Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Vinay and I'm back. This is the second lecture of work, power, energy. पिछले lecture में we studied the concept of work. हम लोगों ने calculate किया था work by gravity. We calculated the work by spring force, and then we looked at its applications via the work energy theorem. How we related work to change in kinetic energy, and we did a few very good questions involving springs, involving gravity, involving both. However, in certain questions, certain type of questions में spring जैसे force है, उसका वर्क डन निकालने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो जैसे कि सपोज ऐसा है, मेरे पास एक स्मूथ रेलिंग है, वर्टिकल स्मूथ रेलिंग. यहाँ पर एक बीड है एंड आई हैव अ स्प्रिंग अटैच्ड टू द बीड दिस वे. ठीक है, let's say spring constant is k, this distance is L. L is also the natural length of the spring, and the bead is released from rest. Gravity भी है, ये रेलिंग जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल. तो पूछा है find the speed of the bead when the spring becomes horizontal. At the instant when the spring becomes horizontal, the question is asking us कि bead का speed कितना होगा. Now, if we go to work energy theorem to do this, we can definitely do it, but बहुत tedious होगा, बहुत लंबा चला जाएगा mathematics उसका, because यहाँ पे जो spring force है, हर instant पे जो spring force है, magnitude भी change हो रहा है, direction भी change हो रहा है. उसका work done लिखने के लिए kx और ऐसे displacement और displacement और spring force के बीच का जो angle है वो भी variable है, फिर integrate करना पड़ेगा spring force के work done को. We calculated work done by the spring when the spring was going from natural length to some point, है ना, or from some point to natural length in a straight line. पर ये जब spring angle पे है, angle भी change हो रहा है, तो work by spring integration लंबा हो जाएगा. So in order to solve such a type of question, we come up with the concept of potential energy, and then we're going to look at today the conservation of mechanical energy. Very important law, conservation law in physics, not just for JEE, in the whole of physics. अपने यूनिवर्स में कंजर्वेशन लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एनर्जी कंजर्वेशन इज द फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट टुडे. तो वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन later on. Once we study the concept of energy conservation, we will come back and we will solve it using that method. ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ. then we look at the concept of potential energy and proceed. So first thing, let us look at the concept of a conservative force. तो फोर्सेस को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फोर्स है अ फोर्स whose work done does not depend on the path taken to go from point A to point B. So for example, point A से point B कोई पार्टिकल जा रहा है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, वो कैसा भी पाथ पार्टिकल लेगा, the force का work done will not depend on the path, it will only depend on the initial position and the final position. So one very obvious example should be gravity, because I know कि gravity का जो work done है, कोई भी path ले लो, gravity का work done only depends on what? The vertical height difference, correct? For any path, the work by gravity from A to B would be mgh. Yeah, we had seen last lecture. So gravity is an example of a conservative force. Spring is also actually example of conservative force, and we will look at that later on how to find whether a force is conservative or not mathematically. यहाँ पे तो अपन ने definition दिया हुआ है, but mathematically how to check whether a force is conservative or not any force अपन बाद में देखेंगे. So for now you can just assume it as a fact कि spring is also conservative. Gravity तो obvious है, spring is also conservative force. ठीक है. One implication of this statement is कि work done by a conservative force in a closed loop is zero. Why?
बिकॉज तुम अगर पॉइंट ए से घूम के वापस पॉइंट ए पर ही आ रहे हो, so there are, you can take any path, of course the work done will be independent of the path taken for a conservative force, but then because you're coming to point A, how about you don't move at all? That is also one process कि तुम A पे ही खड़े, पार्टिकल को A पे ही रखा हुआ है और फिर मूव किया ही नहीं, तो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना हो गया? जीरो, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया. बट देन एनी पाथ शुड हैव द सेम वर्क डन, इंक्लूडिंग द पाथ वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड रादर इज जीरो. तो दैट प्रोसेस इन विच द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज जीरो, मतलब पार्टिकल मूव किया ही नहीं, उसमें वर्क डन जीरो, तो हर पाथ में वर्क डन जीरो है बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन. सो इन अ क्लोज लूप वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो. ठीक है, this is my conservative force. And non-conservative force, you can imagine, is just the opposite. कि the work done from one point to another, जब point A and B fix कर दिया, and work done then depends on the path taken. From A to B, the work done depends on the path that is taken by the particle. इसमें work done in a closed loop need not be zero. ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सब अपन बाद में देखेंगे. फ्रिक्शन वगैरह का वर्क डन के बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस. ऑलराइट, पहले ये समझ लो एंड देन वील गो अहेड. सो नाउ फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस we can define potential energy, the concept of potential energy. इसको U से represent करता हूँ, capital U से. So for conservative forces, we can define a quantity which is known as potential energy, or define a mathematical function that is known as potential energy. उसका क्या definition है? Point A से point B तक you are taking a particle. ठीक है. Now, work done by the conservative force does not depend on the path taken, but it is obviously depends on the initial and the final position. वो दोनों पे obviously depend करेगा, fixed है वो. But कोई भी path लेंगे तो conservative force का work done will not depend on the path that is taken by the particle. So therefore, we define that the work done by the force is equal to negative of change in potential energy. Change in potential energy is potential energy finally minus initially. So what is potential energy? It is a mathematical quantity defined in this manner. कोई एक quantity है which when you go from A to B it changes in this manner such that the change in potential is negative of the work done by the force. ठीक है, ऐसा क्यों डिफाइन करता है वो भी मैं बात करेंगे अपन. बट इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं कि जैसे ग्रेविटी का एग्जांपल लेता हूं मैं. एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट प्लेस, दैट आल्सो वी विल टॉक अबाउट दैट. सो ग्रेविटी के एग्जांपल में आई नो कि सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूं, हाइट डिफरेंस दोनों में h है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज, ग्रेविटी का वर्क डन इज mgh, करेक्ट. सो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फ्रॉम ए टू बी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए शुड बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, करेक्ट. सो यहाँ पे वी हैव अ चॉइस टू सिलेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी at one point. It will not change the physics, we will see later on, but we can choose potential energy at A or at B. अपने को डेफिनेशन में सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, which is equal to work done by the negative of the work done by the force. That is the definition. But potential energy at a point कितना है वो एक्चुअली अपन इसमें से एक वैल्यू अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे अपन क्यों नहीं फर्क पड़ेगा. बट जैसे कि सपोज लेट मी सेलेक्ट, लेट से कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज जीरो. इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने ग्रेविटी का जीरो मान लिया, मेरा चॉइस है एंड आई दैट इज माय चॉइस, आई कैन चूज दैट. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो गया, mgh. So that is how we define potential energy of a particle due to gravity. So अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उससे हाइट h ऊपर
पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, ठीक है। इफ यू हैड चोजन पोटेंशियल एनर्जी एट A to be 0, वो भी कर सकते हो, चॉइस है मेरा। दैट विल इंप्लाई दैट पोटेंशियल एनर्जी एट B वुड बी प्लस mgh फ्रॉम दिस इक्वेशन। देखो UA को 0 सेलेक्ट कर दिया तो सॉरी माइनस mgh, पोटेंशियल एनर्जी एट B वुड बी माइनस mgh, ठीक है। सो कंक्लूजन इज कि इफ यू हैव, कि यहाँ पे कर लेता हूँ कि इन जनरल इफ यू सिलेक्ट पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट दिस हॉरिजॉन्टल लेवल, ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, उसके हाइट h ऊपर पार्टिकल रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। वर्टिकल हाइट h नीचे होगा तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन फॉर ग्रेविटी, ठीक है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये तुम्हारे मन में आएगा कि अपन क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी इवन डूइंग दिस, व्हाई आर वी इवन डिफाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट प्लेस, एंड वी विल सी द रीजन। सो जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा पेशेंस रखो, वी विल सी द रीजन, मैथमेटिकल रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस। बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, मतलब at a location in space. So this potential energy is defined at this height h. यहाँ पे potential energy minus mg is at this height h, ठीक है। It doesn't matter how the path is taken. Potential energy will be defined at point A. Potential energy will be defined at point B. And if I ask you the work done by the force in going from A to B, I can just write it as negative of change in potential energy from A to B. So I need only the values of the potential energy at A and B. I do not need the path taken. समझ में आ रहा है? वर्क डन लिखते वक्त मुझे पाथ तो चाहिए होगा ना, फोर्स को इंटीग्रेट करना है, एफ डॉट डी एस करूंगा तो मैं पाथ तो लूंगा, मैं कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो भी पाथ तो चाहिए मुझे इंटीग्रेट करने को। वर्क डन विल कम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, बट मैथमेटिकली आई हैव टू इंटीग्रेट दैट। बट विद द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट I only have to talk about the potential energy at A and at B. I do not have to talk about the path taken. ठीक है? All right. Now let us see exactly why we have done this and how this will help us solve the kind of complicated problem जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, जहाँ पे स्प्रिंग वगैरह सब एंगल पर था, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ स्प्रिंग के पोटेंशियल सॉरी ग्रेविटी के पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, स्प्रिंग की बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस लुक एट लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देख लो। So mechanical energy of a system is defined as kinetic energy plus the potential energy, ठीक है। ये अभी मतलब स्कूल में शायद पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है वगैरह, बट यहाँ पे अपन प्रॉपरली अपन देख रहे हैं कि why we are defining this. It's a mathematical quantity that we are defining it in the first place. We don't need it actually, but it will help us solve questions faster. सो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके डिफाइन किया है मैथमेटिकल क्वांटिटी, इसके बारे में ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटी उसका नाम मैकेनिकल एनर्जी जो है, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं अपन, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द वर्क बाय द फोर्सेस। लेट्स लुक एट दैट। सो आई नो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। ये तो अपन ने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव। So ये सिंबल, ये सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज कर रहा हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आई कैन राइट इट एज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही डेफिनेशन था पोटेंशियल एनर्जी का। So work done by the non conservative forces is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy, which is change in काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, विच इज, इसको मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलता हूँ, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट एब्रीविएशन। सो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो व्हाट डू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस चेंज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। नाउ इफ the work done by the non-conservative forces is zero, हो सकता है फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस वगैरह है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो है। इन दैट केस द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो एंड देयरफॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। So this is what we were studying the potential energy for.
to finally arrive at this result where the mechanical energy is conserved for a system in which there is no work done by non-conservative forces. और ये जो है principle of conservation of mechanical energy बहुत useful है. In questions where work done is difficult to find, we will go to potential energy का concept, we will go to total mechanical energy and we'll conserve total mechanical energy, or we can write work done by non-conservative forces, change in mechanical energy. We'll use these two things in order to solve questions where the work done is difficult to find. ठीक है, देख लो. Alright, so I want to start applying conservation of mechanical energy to questions, but उसके पहले let us also calculate the potential energy of a spring. Gravity का तो अपन ने कर ही लिया, spring का भी करते, then we can apply the mechanical energy to mechanical energy conservation to questions which involve spring, gravity, थोड़े complicated looking problems, which will be quite easy using mechanical energy conservation. So spring के बारे में देखते हैं. Spring potential energy में मेरे पास ये ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ से उसको x से एक्सटेंड कर दिया अपन ने स्प्रिंग को, ठीक है, यहां पर आ गया. ऑलराइट, तो नेचुरल लेंथ पे जो स्प्रिंग का फोर्स था वो तो 0 है, और एक्सटेंशन x पे स्प्रिंग का फोर्स kx है, ठीक है, एंड दैट वी यूज टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग. सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, लेट्स से पॉइंट A and let's say point B. From A to B, the work done by the spring कितना आता है? -half kx squared, correct? Displacement is to the right and spring force is to the left. We had gotten this in the previous lecture. Now potential energy अगर मैं लिखूँ तो this should be negative of the change in potential energy. Change मतलब final minus initial, so potential energy B minus A at A, correct? Negative of change in potential energy. Change मतलब final minus initial. अब ग्रेविटी में मेरा चॉइस था, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी 0 सेलेक्ट कर लूं, यहां पर भी मेरा चॉइस है, बट मैथमेटिकली मोस्ट कन्वीनियंट चॉइस एंड द स्टैंडर्ड कन्वेंशन इज टू चूज द पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट द नेचुरल लेंथ इटसेल्फ. दिस इज अ चॉइस, नो डाउट, बट आल्सो द बेस्ट चॉइस. ठीक है, तो कुछ बोला नहीं तो हम वी आर ऑलवेज गोइंग टू अज्यूम दिस. ओके, सो देखो पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ मतलब पॉइंट ए पर 0 हो गया, करेक्ट, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी comes out to be half kx squared. कंप्रेस भी x से करूंगा तो वर्क डन -half kx square ही आ रहा था, इफ यू रिमेंबर. सो सेम मैथमेटिक्स होगा कंप्रेशन पे भी. बेसिकली इफ द कंप्रेशन और द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग is x, we say that the potential energy stored in the spring, we ऐसे फ्रेज कर देते अपन, the potential energy stored in the spring, that's how we phrase it in English, is equal to half kx squared. Whether it is compression or whether it is extension, the potential energy is half kx squared, positive है potential energy, ठीक है. Of course we assume that the potential energy is 0 and natural, and don't forget that. Alright, तो spring का potential energy when it is extended by x or compressed by x is half kx square. Gravity के लिए कहीं भी 0 potential energy horizontal level पे मान लो, उसके ऊपर height h गए तो mgh हो जाएगा potential energy, उसके हाइट h नीचे गए तो -mgh हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. These are the things that we need to remember, and now we are going to look at how to solve some good questions using the concept of mechanical energy conservation. ये पहले समझ लो. So let us look at a question जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था, but let's now do it using mechanical energy conservation just to get a feel of कि कैसे अपन थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं अपन mechanical energy conservation से. So जैसे लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक लेक्चर का, ये एक ब्लॉक है, उसको ड्रॉप किया गया, ये मेरा स्प्रिंग है, दिस इज माय ब्लॉक एंड दिस हैज बीन ड्रॉप्ड, एंड पूछा था 3 पार्ट्स थे आई थिंक, फाइंड मैक्स एक्सटेंशन. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ वर्क पर एनर्जी. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ टू डू इट यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. So first thing in mechanical energy conservation, जब gravity is involved, you have to choose a horizontal reference line जहाँ पे potential energy is 0. That is your choice. It won't make a difference. We will see that, but we still have to choose. So let me first choose, कुछ भी select करता, कहीं भी select करता. Let's say मैं यहाँ पे select करता हूँ. ये natural length पर है spring initially. तो यहाँ पे मैं gravity का potential energy 0. ये G represents gravity in my notation. So gravity का potential energy is 0 at this horizontal level. That is my choice. ऑल राइट, हाइट h से ड्रॉप किया गया, एंड
लेट्स से x नीचे जाता है, वहां पर मैक्स कंप्रेशन पे वेलोसिटी जीरो होगा, नहीं तो और नीचे चला जाएगा, है ना। ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, can I conserve mechanical energy? Yes, because there is only gravity and spring involved and both are conservative forces. There is no friction, there is no air resistance, we are neglecting air resistance, there is no friction. So there is no non-conservative force, obviously work done by non-conservative force is zero, so total mechanical energy of the system, of the block and the spring is conserved. So starting position से final position तक we are going to write initial total energy, we are going to write final total energy और फिर equate करेंगे, that is the whole process. Alright, so initially रेस्ट से रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, ठीक है। ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पे रेफरेंस लाइन जीरो माना है, रेफरेंस लाइन मतलब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है उससे हाइट h ऊपर है, कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग एनर्जी जीरो, वी अज्यूम नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और सो टोटल इनिशियल एनर्जी कितना होगा, दोनों को ऐड करो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इज mgh, तीनों को ऐड करो mgh। फाइनली काइनेटिक एनर्जी फाइनली फिर से जीरो। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से x नीचे है ना, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया ग्रेविटी का माइनस mgx, करेक्ट। स्प्रिंग, नाउ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x, so potential energy in it is stored is half kx squared, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया half kx square minus mgx, and both these quantities have to be equal. That is the conservation of mechanical energy. mgh should be equal to half kx square minus mgx, and this is the same equation that we had gotten from work energy theorem as well. फटाफट में अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से इक्वेशन लिखूं तो क्या किया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम हियर टू हियर वुड बी mg into h plus x, वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग तो सिर्फ इतने पैक करा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इनिशियली जीरो फाइनली जीरो, ठीक है। यू कैन सी सेम इक्वेशन, दिस mgx को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, हाफ के एक्स स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो सेम इक्वेशन आएगा। नाउ यू माइट थिंक कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो इतना सिंपल है, एक लाइन में लिख लिया, व्हाई डू वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस व्हेन वर्क एनर्जी थ्योरम इज देयर टू सेव अस। बट आई अग्री कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी क्विक। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनिशियली पहले रेफरेंस लाइन चूज करो, फिर इनिशियल पोटेंशियल लिखो, फिर फाइनल लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द क्विकेस्ट वे। बट लाइक आई शोड इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जहाँ पे स्प्रिंग वगैरह एंगल पे हो जाएंगे, वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी डिफिकल्ट बिकॉज वर्क डन बाय स्प्रिंग टाइप के फोर्सेस विल बी डिफिकल्ट टू राइट, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ फेमिलियर एग्जांपल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, ऑलराइट। लेट मी ऑल्सो शो यू कि अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहाँ पर ले लिया कहीं और पोजीशन पे, तो आई वांट टू शो यू कि द फिजिक्स विल नॉट चेंज, द फाइनल इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेट मी टेक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हियर इनिशियली। नेक्स्ट मैं पहले ये देख लो, रब करके थोड़ा फ्रेश बोर्ड पे करता हूँ। सो alternate method is to select the potential energy for gravity reference line at some other position, कहीं भी select कर सकता हूँ। So let just as an example let me select it here, यहाँ पे select कर दिया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जीरो वैल्यू, ठीक है, ये हाइट h है। ओके, सो इनिशियली कितना काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का भी फिर अभी जीरो हो गया बिकॉज वहाँ पे वहीं पे मैंने सेलेक्ट किया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और स्प्रिंग तो इनिशियली नेचुरल एंड तो पूरा एनर्जी जीरो, ठीक है। और फाइनली कितना एनर्जी हो जाएगा, फाइनली कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ से x नीचे चला गया, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो फिर से जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो लेवल माना है, तो यहां से नीचे कितना आया h प्लस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ग्रेविटी का माइनस mg h प्लस एक्स। जहां भी रेफरेंस लाइन जीरो माना मैंने पोटेंशियल एनर्जी का, उससे हाइट h नीचे कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस mg h। एंड व्हाट अबाउट स्प्रिंग एनर्जी हियर कंप्रेस्ड बाय x, so this is the final energy, total mechanical final energy, kinetic energy, gravitational potential energy minus mg h plus x, and spring energy half k square equated to the initial energy which is zero, ठीक है। So of course the total energy value will depend on where you select the reference line of the potential energy, but the physics will not change because the final equation only depends on the change in potential energy.
हो गया, you can see, you can match with the previous equation. ये obviously same ही equation है. Alright, so it doesn't matter where you select the potential energy to be zero, that is your choice. Spring के लिए the best choice is the natural length, but gravity के लिए it doesn't make too much of a difference. कहीं भी select कर लो according to your convenience. देख लो. Now let's come to the first question of this lecture. जो मैंने बोला कि work energy theorem से मुश्किल होगा. तो क्या था ये, spring ऐसे connected था. And when the spring becomes horizontal, तो पूछा था ये बीड जो मास m का है उसको रेस्ट से रिलीज किया. when the spring becomes horizontal, वो नीचे आएगा, तो इस इंस्टेंट पे वो स्पीड कितना हो जाएगा. दिस वाज आस्क्ड. ठीक है, ग्रेविटी भी है. राइट, सही है. इनिशियल एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल से स्प्रिंग को एक्सटेंड करके, मतलब स्प्रिंग को थीटा एंगल से रोटेट करके छोड़ दिया. ठीक है, तो द बीड कैन स्लाइड ऑन द स्मूथ रेलिंग. ओके, सो ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. यूज एनर्जी कंजर्वेशन, राइट डाउन द इनिशियल एनर्जी. सो फॉर द इनिशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए यू विल हैव टू राइट डाउन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एंड यूज हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ओके, सो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का कहाँ पर मैं जीरो लूँ, माई चॉइस, लेट मी सिलेक्ट इट हियर. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा ग्रेविटी का, जस्ट माई चॉइस. ठीक है, ये L है, तो ये हाइट कितना हो गया, L tan थीटा, करेक्ट. अच्छा, ये कितना हो गया लेंथ, L sec थीटा. सो इनिशियली कितना पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी का, जीरो. सॉरी, इनिशियली तो ये पॉइंट है. हाँ, इनिशियली कितना पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी का, mg L tan थीटा, mgh. काइनेटिक एनर्जी जीरो. और स्प्रिंग एनर्जी कितना है, हाउ मच इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. द एक्सटेंशन इज ऑलवेज द एक्चुअल लेंथ माइनस द नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ इज दिस L given to us in the question. Actual length is L sec theta. So extension is L sec theta minus L. ठीक है, so spring energy initially would be half k into extension का square, which is L into sec theta minus 1 का square. Alright, ये मेरा इनिशियल एनर्जी हो गया mgh एंड हाफ के एक्स स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी जीरो. फाइनली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है ग्रेविटी का, जीरो. वो तो मैंने माना. दिस इज नेचुरल लेंथ, तो वंस द स्प्रिंग कम्स टू नेचुरल लेंथ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, बचा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी. हो गया, दैट्स इट. यू विल गेट, यहाँ से तुमको v स्क्वायर, v निकल जाएगा ना, बस 2m से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे सिस्टम को, तो v स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट इज योर स्पीड. ठीक है, कैलकुलेशन तो ईजी है, मतलब कुछ करने की जरूरत है नहीं. So I hope you understood how easily we were able to solve this question using mechanical energy conservation. We were able to write the potential energy of the spring instead of looking at the work done. ठीक है, that is the whole point of mechanical energy conservation. अगर तुमको work done लिखना होगा, let me also show you that and you will appreciate कि अपन ने क्यों पढ़ा है पूरा चीज़ mechanical energy conservation. So at some instant, let's say this angle is some phi. At some instant, तो ये कुछ kx का फोर्स है. व्हाट इज x, x इज द एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लेंथ L है, तो L sec थीटा माइनस L sec phi, सॉरी माइनस L will be the force, correct. L sec phi is my length of the spring at some instant minus the natural length L is my extension into k is my force, and let's say this is my displacement. तो ये मेरा एंगल 90 माइनस फाइव हो गया. तो वर्क डन वुड बी k इंटू एल सेक फाइव माइनस 1 इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, मतलब साइन फाइव का इंटीग्रल, फोर्स इंटू एफ डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, एंड देन डी एस को सी इफ आई से दिस इज वाई, आई कैन राइट डी एस इज माइनस डी वाई. वाई मतलब क्यों, क्योंकि जैसे नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, वाई कम हो रहा है ना, कितने से कम हो रहा है, डी वाई से कम हो रहा है. तो डी वाई मतलब डी वाई तो नेगेटिव है, चेंज इन वाई नेगेटिव है. ठीक है, और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आई कैन राइट वाई एस एल टैन फाइव, दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एल टैन फाइव. सो डी वाई बाई डी फाइव वुड बी इक्वल टू एल सेक स्क्वायर फाइव. सो डी वाई वुड बी एल सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव. एंड यू कैन सी ये सब बहुत लंबा हो रहा है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग इतना मुश्किल क्यों है.
dy को मैंने क्या लिखा, एल सेक स्क्वायर फाई डी फाई बाय डिफरेंशिएटिंग दिस, और ये dy से मुझे ds निकलेगा, वो ds यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पूरा मेरा इंटीग्रल फाई में आ जाएगा. दैट इज माई पॉइंट कि आई वांट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फाई. सो आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट ds टू डी फाई बाय राइटिंग ds एज माइनस dy, एंड देन dy को मैंने इसको डिफरेंशिएट करके लिखा. ऑलराइट, सो इससे आगे मैं कुछ करूंगा नहीं. इफ यू वांट यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस बैक अगेन, इंटीग्रेट इफ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट. आई थिंक इंटीग्रेशन सेक फाई का आएगा, वो देख लेना जिसका भी इंटीग्रेशन आएगा. But if you want, you can give it a try, and obviously you will get the same spring का work done as this. This is the work done by the spring, because spring का work done is negative of change in potential energy. Final potential is 0, initial potential energy is this. तो ये मेरा work done by spring हो गया. So you can see how easy mechanical energy conservation का concept या potential energy का concept is very useful to us. But this is how you will actually do it from first principles or from basics if you want to. ठीक है? So in such type of questions, mechanical energy conservation will rescue us. देख लो. Let's do another question. मेरे पास एक स्मूथ रेलिंग है, हॉरिजॉन्टल है अभी. वर्टिकल से एंगल 60 डिग्रीज पे एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है बीड से, उसको रिलीज किया हुआ है. ठीक है, एंड स्मूथ रेलिंग है एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एंड लेट्स से ये जो लेंथ एल है बिटवीन द टू रेलिंग्स, दैट इज आल्सो द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. सो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बीड. स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है. ओके, ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. So smooth है, so there is no friction, so no non-conservative force, therefore I can conserve mechanical energy. So that is what I will do. Initially the spring energy is half kx square. तो initial extension कितना है? तो ये लेंथ कितना होगा? ये L है, तो cos 60 is half, so this length would be 2L, correct? So extension would be L because it is the actual length 2L minus the natural length L. Actual minus natural length is L. ठीक है. Now initial kinetic energy 0. पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी की बात करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल पे ही मूव कर रहा है. तो मैं वही हॉरिजॉन्टल लाइन को ही पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का 0 मान लेता हूँ. तो इनिशियली भी 0, फाइनली भी 0, हमेशा 0. तो मुझे ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी की बात करने की जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है, कोई वर्टिकल मोशन है ही नहीं. बट अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा? यू शुड बी एबल टू सी मैक्सिमम स्पीड विल बी व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल, बिकॉज उसके बाद एज द बीड गोज टू द लेफ्ट, स्प्रिंग विल अगेन एक्सटेंड एंड डिसेलरेट द बीड. सो मैक्सिमम स्पीड विल बी व्हेन द स्प्रिंग इज वर्टिकल. यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा. सो उस पॉइंट पे स्प्रिंग का एनर्जी 0 है बिकॉज नेचुरल लेंथ पर आ गया, और बस काइनेटिक एनर्जी बचेगा. सो इनिशियल एनर्जी कितना है? हाफ k इंटू एक्सटेंशन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0, एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट हाफ mv स्क्वायर, but spring energy is 0. Simple equation. कितना आ जाएगा? KL square by m का square root. ठीक है, that is your answer for the maximum speed of the bead. Alright, so this is how energy conservation, mechanical energy conservation will help us in such questions, especially जब springs angle पर है, then mechanical energy conservation is the way to go. देख लें, एक और क्वेश्चन करते हैं. तो ऐसा मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, ये नेचुरल लेंथ पर इनिशियली है, एंड लेट्स से कि इट हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. तो पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन द एक्सटेंशन इज लेट्स से mg/k. ठीक है, ये पूछा गया, इसको रेस्ट से रिलीज किया हुआ. Okay, so you can in this question you can use work energy theorem, you can use energy conservation, खुद figure out करो. It is मतलब you can use anything that you want. Smooth surface है, try it out, then take a look at my solution. ठीक है, so let's say कि ये extension कितने से नीचे गया? जितना extend हुआ spring उतना ये नीचे रहेगा ना. ठीक है, so let's say at that instant उनका speeds v है, दोनों का speed same ही होगा obviously. Let me conserve energy. I can use work energy theorem also, but let me conserve mechanical energy here. So let's say कि initially gravity का potential energy 0 था,
तो इस ब्लॉक का मुझे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का लिखने की जरूरत है नहीं। अगर मैंने यहाँ पे जीरो माना है इनिशियल पोजीशन पे ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ऊपर वाले ब्लॉक का कुछ तो होगा, बट वो फाइनली भी वही होगा बिकॉज वो तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो दोनों साइड पे कट जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में। सो आई डोंट हैव टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, ओके, ग्रेविटी का। ऑलराइट, सो इनिशियली क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, रेस्ट से रिलीज किया काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्प्रिंग एनर्जी नेचुरल लेंथ पर है तो जीरो, ठीक है। फाइनली वो नीचे गया कितने से, इतने से, तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया ग्रेविटी का, माइनस एम जी एच, एच इज माई एम जी बाई के। स्प्रिंग का एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर्ड, एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम वेलोसिटी होगा, सेम स्पीड होगा रादर, हाफ टू एम वी स्क्वायर, है ना, हो गया, ठीक है। दैट्स इट, दैट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सॉल्व फॉर द स्पीड। यू शुड गेट इट एज जी रूट एम बाय 2k, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। वो कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, राइट। देख लो, लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन है कि इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग इनिशियली, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम डैश सच दैट m gets lifted off the ground. Find the minimum value of m dash when it is released. तो क्या होने वाला है कि m dash नीचे जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, if the spring force is able to overcome the gravity of this block, the block will get lifted off, ठीक है। that is what the process is going to be. So find the minimum value of m dash such that this block just gets lifted off. तो बस एक चीज बोलता हूँ, I'll ask you to try, बस एक चीज बोलता हूँ कि the best chance of this block getting lifted off is when the spring force is maximum, and spring force is maximum when the spring is at its maximum extension, ठीक है। तो ट्राई करो, then take a look at my solution. So best chance of this getting lifted off is when the spring force is maximum. The spring force is maximum at its maximum extension. So kx is equal to mg से मुझे x मिलेगा. That is the maximum extension of the spring. And at maximum extension, ये पॉइंट तो स्टेशनरी है, ये जस्ट लिफ्ट ऑफ मतलब जस्ट नॉर्मल फोर्स वहां पे जीरो हो जाएगा, है ना, वो एक्चुअली ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज जस्ट इक्वल टू mg के। तो ये पॉइंट तो फिक्स्ड है स्प्रिंग का, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, जैसे स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो ये ऊपर जाएगा, जितना ये ऊपर गया उतना नीचे आएगा ये m डैश, करेक्ट। ये कितना ऊपर जाएगा, एक्सटेंशन के बराबर, ये नीचे आएगा। मैक्स एक्सटेंशन पे इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना, अगर वेलोसिटी होगा स्प्रिंग के अपर एंड का तो वो तो और ऊपर चला जाएगा, सोचो। तो ऑब्वियसली मैक्स एक्सटेंशन पे इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो, मतलब इस पॉइंट का भी वेलोसिटी जीरो होगा। सो एट मैक्स एक्सटेंशन दिस ब्लॉक m डैश हैज कम डाउन बाय x, एंड उसका वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे कितना है, जीरो। m का तो जीरो ही है, बट m डैश का उस इंस्टेंट पे कितना हो गया, जीरो। ऑलराइट, नाउ आई कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। सो लेट मी टेक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो ले लेता हूँ ग्रेविटी का फॉर m डैश। m के बारे में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो मूव हो ही नहीं रहा। सो इनिशियल नेचुरल लेंथ स्प्रिंग एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट जीरो, सब कुछ जीरो। फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी x नीचे गया m डैश, सो माइनस m डैश dx। स्प्रिंग एनर्जी एक्सटेंड हुआ x से, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी m डैश का जीरो और m का तो जीरो ही, तो कुछ नहीं हो गया। सो देयरफॉर m डैश बिकम्स इक्वल टू, एक x तो कट गया, सो m डैश देखो कितना आ जाएगा, kx by 2g, और kx का वैल्यू कितना है, mg। ऑलराइट, so at the instant when the spring force becomes maximum on this block and it becomes equal to mg, m dash का velocity is zero. Don't make the mistake of writing m dash का acceleration is zero. वहां पे maximum extension नहीं होगा, acceleration zero मतलब वहां पे velocity maximum होगा, तो और नीचे जाएगा तो और extend होगा ना, correct? So we need only half the mass of the block in order to lift this. Okay, देख लो. That's it for today. I'll see you on the top. Good night.